السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشیں باعفت باعزت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے مسجد سلفیہ مسلم پورہ کریم نگر کے اندر اکٹھا ہے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس دینی باتیں سننے اور سنانے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اجلاس کے ناظم محترم نے آپ کے سامنے ایسی محفلوں کی، ایسی مجلسوں کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ چیزیں بیان کر دی، اور میرا عنوان آج کا کیا ہے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ آج کے اس محفل کا، اس مجلس کا عنوان ہے اسلامی گھروں کے اوصاف۔ اسلامی گھر کیسے ہوا کرتے ہیں، یا اسلامی گھروں سے ہم اور آپ کیا مراد لے سکتے ہیں؟ ہم اور آپ بظاہر مسلمان ہیں، مومن ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، ہمارا گھرانہ اسلامی ہے، یہ ہم اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھرانہ ہے؟ ہمارے گھرانے کی جو تشکیل ہے، ہمارے گھرانے کا جو طرز ہے، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آج کے اس عنوان کے تحت، اسلامی گھروں کے اوصاف، اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے انہی سب چیزوں کو نکات کی روشنی میں رکھوں گا۔ دیکھیے، گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر گھر انسان کے پاس نہ ہو تو اسے چین نہیں آتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے، تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دی، سکون کا ذریعہ، مسکن ٹھہرا دیا، مسکن قرار دے دیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس سٹینڈ میں، اور اسی طریقے سے فٹ پاتھ پر، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، جن کے پاس رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ تک میسر نہیں ہے۔ گھر کی اہمیت جا کر ان سے پوچھئے کہ گھر کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان کے پاس کھانے کی چیز نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے گزارا کر لے گا، لیکن اگر گھر نہیں ہے تو انسان کو سکون نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا اور صحابہ کرام نے ہجرت کیا، تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑی وہ کیا تھی؟ رہنے کی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ انصاری صحابہ سے کہا کہ اے لوگوں، تم میرے مہاجرین کو مدد دو، میرے مہاجرین کو پناہ دو،
اللہ तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें अजर व सवाब से नवाजेगा। क्या किया अंसारी सहाबा ने? सबसे पहले अपने घरों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और मुहाजिरीन सहाबा को अपने घरों में दाखिल होने की इजाजत दे दी और बाकायदा अपने घरों को दो हिस्सों में तकसीम करके उन्हें सबसे पहले रहने की जगह दी, ठहरने के लिए जगह दी और रात गुजारने के लिए छत दिया। ये घर की अहमियत हुआ करती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मैं इतना भूखा था, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। फाके हैं, सहाबा इकराम की जिंदगी ऐसी गुजरा करती थी, खाने को कुछ भी नहीं, फाका चल रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जबान से कहते हैं कि मैं इतना भूखा था कि घर से मैं बाहर निकला कि कुछ मुझे मिल जाए खाने को, कुछ भी नहीं मिला। मस्जिद नबवी में जाकर के मैं सहन में लेट गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद मुझे बुलाया और अपने घर में बैठा करके मुझे खाना खिलाया। जब मैं खाना खाकर वापस घर गया तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कर रहा था कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे खाने के लिए तो दूसरों के जरिए से मुझे रिज़्क़ दिया, लेकिन ऐ अल्लाह, तूने मुझे घर दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए नेमत है, ये तेरी बहुत बड़ी नेमत है कि तूने मुझे घर जैसी नेमत से नवाज दिया। लिहाजा ऐसी नेमतों का अगर हम और आप शुक्रिया अदा न करें तो फिर यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होगी और नेमतों की नाकदरी होगी, नेमतों की तहकीर होगी। घर बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्रिया अदा करना हमारे ऊपर, आपके ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर लाजिम है, जरूरी है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, लइन शकरतुम, ऐ लोगो, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्रिया अदा करोगे, लज़ीदन्नकुम, तो हम तुम्हें और अता करेंगे, बढ़ा करके देंगे। अब इंसान सवाल कर सकता है कि भाई घर हमारे लिए नेमत है तो हम घर पर शुक्रिया अदा करें तो क्या अल्लाह हमें और घर देगा? नहीं, बल्कि घर के अंदरूनी माहौल को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशगवार बना देगा। घर के अंदर के माहौल को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत नुमा और जन्नत नजीर बना देगा। घर में खुशियां होंगी। आज आप गौर करते होंगे, हमारे पास घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बंगले भी हैं, गाड़ियां भी हैं, तमाम चीजें हैं। घर के अंदर रिश्तेदार भी हैं, माँ है, बाप है, भाई बहन, बेटे बेटियां, बीवी, सब कोई है, लेकिन घर में सुकून नहीं है। आपने गौर किया? घर में सुकून नहीं है। आपके पास दिल की बातें रखने वाला कोई नहीं है। आप घर में जाते हैं तो नहुसत छा जाती है। भाई क्या मसला है? घर में जाते ही आदमी को जो है इत्मीनान मिलना चाहिए, मुतमईन हो जाना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। आदमी घर जाता है तो इत्मीनान नहीं मिलता, बल्कि बेचैन हो जाता है, आदमी बेचैन हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग कई कई घंटों तक घर से बाहर रहते, बिना वजह घर नहीं जाना चाहते। ये आज हमारे और आपकी हालत है कि हमने घर तो बना लिए, लेकिन घरों के अंदर इस्लामी माहौल नहीं है, मुसलमानों वाली सिफतें घर के अंदर नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमारे घरों में सुकून नहीं रखा। बेसुकूनी आम है, आज बेसुकूनी आम है। आपके पास बातें करने के लिए लोग हैं, आपके पास बातें करने के लिए लोग हैं, लेकिन सुकून हासिल करने के लिए कोई नहीं है। घर के अंदर आप जाएंगे, सुकून नहीं मिलता। तो घर बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत गैर मुतरकबा पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो ये घर के ताल्लुक से कुछ तमहीदी बातें थी। अब आइए हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं कि इस्लामी घर कैसा होता है, इस्लामी घरों के औसाफ कैसे हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस चीज को नुकात की रोशनी पर देखेंगे, पॉइंट्स की रोशनी पर देखेंगे कि एक एक नुक्ते पर अगर हम और आप अमल करते हैं और उस पर अगर हम अमल कर लें तो यकीनन हमारा और आपका घर इस्लामी घर कहलाएगा और हमारा घर इस्लामी औसाफ से मुत्तसिफ हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है? घर के अंदर अकीदा तौहीद का मजबूत होना। और से सुनिए, घर के अंदर अकीदा तौहीद का मजबूत होना ये एक बहुत बड़ी बात है। घर में अगर अकीदा मजबूत नहीं है, घर में माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, और अगर घर के माहौल में अकीदा नहीं है, तौहीद नहीं है घर वालों के दिलों में, तो फिर इंसान का घर कभी खुशगवार नहीं हो सकता। आप देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा अपने आप को नबी का बेटा कहलाता था। अल्लाह के रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी के बेटे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह के नबी के बेटे हैं। नूह अल्लाह के नबी हैं, उनका बेटा है।
लेकिन क्या हुआ उनके बेटे के साथ? उनके अंदर तौहीद जब नहीं है, उनके अंदर अकीदा नहीं था, तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नूह, जाओ तुम कश्ती बनाओ और तुम पर ईमान लाने वालों को अपने साथ ले लो और चले जाओ। कश्ती पर सवार हो जाओ और अपने साथ ले लो ईमान वालों को। तुम पर ईमान लाने वाले जो हैं उन्हें अपने साथ ले लो और चले जाओ कश्ती में सवार होकर। ईमान लाने वाले चंद लोग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत व तबलीग का काम करते हैं। 950 साल कोई छोटा मोटा अरसा नहीं है, एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा अरसा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को अपनी कौम के सामने पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रब है, अल्लाह खालिक है, मालिक है, इस चीज को लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, और अक्सरियत ऐसी थी जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई थी। और ईमान न लाने वालों में उनका बेटा भी मौजूद था, उनका बेटा भी शामिल था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया कि नूह कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील की और कश्ती तैयार हो गई। कश्ती बनाकर तैयार है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पुकारते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों जो मुझ पर ईमान लाते हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हो, आ जाओ, आज कश्ती पर सवार हो जाओ, कश्ती पर सवार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सैलाब आने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे वो सारे के सारे लोग कश्ती में चढ़ जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में खड़े नीचे देखते हैं, उनका बेटा कश्ती में सवार नहीं हो रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम निदा लगाते हैं, सदा लगाते हैं, अपने बेटे को पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, या बुनय्यरकम माना वला तकुम माल काफिरीन। आए मेरे बेटे, आए मेरे लख्ते जिगर, है मेरे नूज़े नज़र, आजा तू भी कश्ती में सवार हो जा, तू भी कश्ती में चढ़ जा। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आने वाला है और अल्लाह के अज़ाब से कोई भी बच नहीं सकता। हजरत नूह का बेटा क्या जवाब देता है? क़ाला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है, क़ाला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। आए अब्बा जान, आप मेरी फिक्र ना करें, आप मेरी टेंशन ना ले, आप चले जाइए। मैं अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, मैं आप पर भी ईमान नहीं लाता, मेरे दिल में तौहीद नहीं है, मेरे दिल में अकीदा नहीं है, मेरे दिल में रब का ईमान नहीं है। आप अपने लोगों को लेकर के कश्ती से आगे बढ़ जाइए, मैं आपके साथ नहीं आने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पुकार रहे, नबी है, अपने बेटे को पुकार रहे, या बुनय्यरकम माना, आ जाओ कश्ती में सवार हो जाओ। उधर से जवाब क्या देते हैं? क़ाला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। अरे अब्बा जान, वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, आप चले जाइए, मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। जब अल्लाह का सैलाब आएगा, अजाब आएगा, तंजिया तौर पर कहते हैं कि मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। मैं अल्लाह का अजाब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। आए मेरे बच्चे, आए मेरे बेटे, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आने वाला है। तू जो कह रहा है कि तू पहाड़ पर चढ़ जाएगा और अल्लाह के अज़ाब से बच जाएगा, तो सुन ले, आज अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, कि आज अल्लाह के अज़ाब से कोई भी नहीं बचने वाला, आज अल्लाह के सैलाब से कोई भी नहीं बचने वाला। अभी बाप बेटे के दरमियान में गुफ्तगू जारी थी, बाप बेटे आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन जारी है। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैलाब को हुक्म दिया, वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुग़रक़ीन। बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू जारी है, बाप अपने बेटे को समझा रहे, नसीहत कर रहे हैं, बेटा अपने बाप को जवाब दे रहा है कि जाओ मैं नहीं आऊंगा। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का सैलाब आता है, वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुग़रक़ीन। बाप बेटे बात कर रहे हैं, अल्लाह का सैलाब आया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया और मर गया।
حضرت نوح अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा डूब रहा है। फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, वनादा नूह रब्बहू फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली। ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था कि तू मेरे घर वालों को नहीं डुबाएगा, तू मुझ पर ईमान लाने वालों को नहीं डुबाएगा। ऐ अल्लाह, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। वनादा नूह रब्बहू फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ अल्लाह, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है, तू मेरे बेटे को बचा ले। अकीदा नहीं था नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के दिल में, अकीदा नहीं था। आदमी ये कह दे कि नहीं, मेरा बाप बड़ा मुत्तकी, मैं अगर नमाज नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, मेरा बाप बड़ा परहेजगार, मैं अगर दीनदार नहीं रहा तो भी चलेगा, मेरा बाप जो है बहुत बड़ा हाजी, और अगर मैं ईमान नहीं लाया तो भी मसला नहीं है। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम नबी है, अपने बेटे को पुकारते हैं, उनके बेटे के दिल में अकीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह क्या जवाब देता है? क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ऐ नूह, ये तेरा बेटा नहीं है। कैसे बेटा नहीं है? अरे नूह अलैहिस्सलाम का तो बेटा है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, वो तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं है, वो तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल दुरुस्त नहीं है, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसका ईमान मुझ पर नहीं है, उसका ईमान तुझ पर नहीं है, मैं कैसे उसे बचा लूं? मालूम क्या हुआ? अकीदा नहीं है, तौहीद नहीं है, इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता, कहीं कामयाब नहीं हो सकता, न दुनिया में कामयाब हो सकता है और न ही आखिरत में कामयाब हो सकता है। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से हमें और आपको सबक मिला कि अल्लाह तबारक व तआला अगर बगैर तौहीद के, बगैर अकीदे के अगर किसी को निजात दे देता तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को निजात दे सकता था ना। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती से डांटा और कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, याद रखो ये तुम्हारे हल में से नहीं है, इसने मुझ पर ईमान नहीं लाया, इसका अकीदा मुझ पर नहीं है, इसका ईमान मुझ पर नहीं है, और इसने तेरी बातें नहीं मानी, मैं कैसे उसको बचा लूं? लिहाजा अगर वो ईमान वाला नहीं है, अकीदे वाला नहीं है, ना दुनिया में कामयाब होगा ना आखिरत में कामयाब होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला सुना दिया। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे को कितना अहम रखा है अपनी नजर में आप गौर कीजिए। अकीदे का जो तौहीद है, ये अकीदे तौहीद है, अगर आप इसके ऑपोजिट कोई वर्ड ढूंढते हैं तो वो क्या है? शिर्क है। शिर्क है। अब शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की नजर में कितना मबगूज है और कितना ही नापसंदीदा है, आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला सूरे अनआम के अंदर अपने 18 नबियों का तज़किरा करता है। कितने नबियों का? 18 नबियों का तज़किरा करता है। हजरत इब्राहीम, इस्माइल, यूनुस और यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, इन तमाम नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनकी अच्छाइयां भी बयान कर देता है, उनके नेक सिफात भी बयान कर देता है, और उसके बाद कहता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, कि ऐ लोगों, अगर मेरे ये 18 नबी भी शिर्क करते, अगर मेरे ये 18 नबी जिनका हमने तज़किरा किया, जिनकी हमने अच्छाइयां बयान की, जिनकी हमने खूबियां बयान की, जिनकी हमने सिफतें बयान की और जिन्हें हमने नबूवत के मनसब पर फाइज किया, अगर ये 18 नबी भी शिर्क कर लेते लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, तो इनके तमाम के तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते। आप अंदाजा लगाइए, घर के अंदर बाप है, बाप के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं है, घर के अंदर बेटा है, बेटे का तौहीद सही नहीं है, बेटे का ईमान दुरुस्त नहीं है, घर के अंदर बेटी है, बेटी का ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नहीं है, गैरों से अगर जो है वास्ता है, गैरों से वसीला लेकर के अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतें कबूल नहीं करेगा। हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? इबादत। इबादत कबूल होना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इसीलिए पैदा किया कि हम अल्लाह की इबादत करें और हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएं। लेकिन अकीदा नहीं है, तौहीद नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को, हमारी इबादतों को कबूल नहीं करेगा। दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाता है अपने आखिरी नबी, अपने महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए क्या फरमाता है? कितनी बड़ी बात। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी के दिल में तौहीद नहीं है, अकीदा नहीं है और उसके दिल में अगर शिर्क है, तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ वो आदमी
कैसा है, कितना नापसंदीदा है, आप इस आयत से अंदाजा लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से खिताब करते हुए फरमाता है, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। हमने आपसे पहले भी बहुत सारे नबियों को भेजा और हमने उनकी जानिब वही की, आप पर भी हम वही कर रहे हैं और वही आयतें नाजिल कर रहे हैं। लइन अशरकता, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क कर लेंगे, लयहबतन्ना अमलुका, तो आपके भी तमाम की तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, अकारत कर दिए जाएंगे, आप भी घाटे में पड़ जाएंगे। ये शिर्क की मजम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। तो मालूम ये हुआ कि इंसान के अंदर अकीदे का होना बहुत जरूरी है। बगैर अकीदे के इंसान ना दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। और घर के अंदर जो लोग हैं उनका अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाकया बयान किया और फरमाया, सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटे ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किसी दूसरे को खालिक ना मान लेना, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मालिक ना मान लेना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसी दूसरे को राज़िक ना मान लेना। आज हमारे और आपके अंदर ये चीजें हैं। आज बाप खुद मुआहिद नहीं है, आज बाप खुद तौहीद परस्त नहीं है, बेटे को क्या नसीहतें करेगा। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को क्या नसीहत कर रहे हैं, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, शिर्क नहीं करना, कभी भी शिर्क मत करना। ये हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करके लोगों को बता दिया कि अपने घर के अंदर अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। जिस तरीके से हजरत लुकमान ने अपने बच्चे से कहा कि शिर्क मत करना, शिर्क के अलावा सब कुछ कर लो, शिर्क मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म अज़ीम है। लिहाजा शिर्क करने से एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने घर में बच्चों को ये नसीहत करे कि शिर्क न किया जाए, अकीदा तौहीद मजबूत करें। और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त याद कीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरज़ुल मौत में मुब्तला है, बीमारी के अय्याम में है, अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, क्या कहते हैं कि मा ताबुदून मिन बादी, बताओ मेरे बच्चों, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसे माबूद मानोगे, किसे खालिक मानोगे और किससे रोजी मांगोगे, किससे औलादे मांगोगे। बताओ कब एक बाप कब ये दुआ जो है अपने बच्चों को नसीहत कर रहा है और सवाल कर रहा है, जब वो मरज़ुल मौत में मुब्तला है, अब मरने वाला है। वो बाप अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहता है, मा ताबुदून मिन बादी, बताओ मेरे बच्चों किसकी इबादत करोगे मेरे जाने के बाद। एक बाप को कितनी फिक्र है अपने घर वालों के अकीदे की, अपने घर वालों के तौहीद की कितनी फिक्र है कि मरते मरते वो पूछ करके जा रहा है, सवाल करके जा रहा है कि मुझे बता दो तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। बेटों में दीनदारी थी, बेटों में अकीदा तौहीद की पुख्तगी थी, बाप की तरबियत का नतीजा था, बाप अकीदा तौहीद पर था, बाप के अंदर तौहीद है, बाप के अंदर अकीदा है, बच्चों की तरबियत उसी तरीके से की थी। बेटों ने भी बैक ज़बान होकर जवाब दिया, क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। ऐ अब्बा जान, आप बेफिक्र रहिए, हम उसी की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे, जिसकी इबादत आपके बाप करते थे, जिसकी इबादत आपके दादा करते थे। ऐ अब्बा जान, आप बेफिक्र रहिए, हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। इस वाक़े से क्या मालूम हुआ कि एक बाप को चाहिए कि अपने घर वालों के दिलों में अकीदा तौहीद को मजबूत करे और हर वक्त ये ख्याल रखे, चौकन्ना रहे कि मेरे घर में कहीं शिर्क तो नहीं आ गया, मेरे घर में कहीं बेटा तावीज तो नहीं बांध रहा, मेरे घर में बेटी कहीं पर जो है कमर में धागा तो नहीं बांध रही है, मेरी बीवी कहीं जो है
छोटे बच्चों को काला टीका तो नहीं लगा रही है नजर बद से बचने के लिए। ये चीज एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो घर का सरबराह होने की हैसियत से, घर का जिम्मेदार होने की हैसियत से अपने घर की इतनी फिक्र करे और अपने घर वालों का इतना ख्याल रखे कि कहीं उनका अकीदा बिगड़ ना जाए, उनका तौहीद कहीं जो है दुनियावी रस्म रिवाज में आकर के और गैरों की मुशाबियत इख्तियार करते हुए कहीं उसका तौहीद जो है लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। ये एक बाप को फिक्र होनी चाहिए कि घर के सरबराह की जिम्मेदारी है। तो ये अकीदे तौहीद पहला और सबसे बुनियादी पॉइंट है, सबसे बुनियादी नुक्ता है कि अगर हमें और आपको अपना घर इस्लामी बनाना है, अपने घर के अंदर का माहौल इस्लामी बनाना है, तो सबसे पहले अकीदा मजबूत करना होगा। बगैर अकीदे के इंसान न दुनिया में कामयाब है ना आखिरत में कामयाब है। तो घर तो एक छोटी सी चीज हो गई ना, इंसान दुनिया में ही कामयाब नहीं है तो घर के अंदर क्या कामयाब होगा, उसका घर भी कामयाब नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज है, अगर इंसान अपने घर को इस्लामी घर बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि घर के अंदर नेक बीवी का इंतखाब करे। और ये कब होगा? शादी के वक्त ही करना है। बाद में अगर आदमी जो है शादी करता है, 30 साल 35 साल में शादी करके लेकर के आ रहा है, उसकी बीवी 30 साल की है, 25 साल की है, अब वो उसकी तरबियत करेगा। 20-25 साल और 25 साल की जो औरत होगी उसकी तरबियत होगी? नहीं होगी। तरबियत का वक्त कौन सा है? बचपने का वक्त तरबियत का वक्त हुआ करता है। तो शादी के वक्त आदमी ये देख ले कि मेरी बीवी जो होने वाली है वो दीनदार है या नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। पूरी की पूरी दुनिया इंसान के लिए नफा बख्श है, फायदे उठाने वाली चीज है। ये पूरी की पूरी दुनिया से इंसान फायदा उठाता है। आप देख लीजिए दुनिया की कोई भी चीज, आप ये माइक देख लीजिए, आप ये कुर्सी देख लीजिए, आप ये चटाइयां देख लीजिए, आप ये फैन देख लीजिए, लाइटें देख लीजिए, इंसान तमाम की तमाम चीजों से फायदा उठाता है। अद्दुनिया कुल्लुहा मता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा ये दुनिया पूरी की पूरी चीज क्या है? फायदा उठाने वाली चीज है। व खैरु मताइ दुनिया, और इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी चीज कोई है, सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है, फरमाया गया अल मरअतु सालिहा, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन वो है जो नेक औरत है, जिसके अंदर दीनदारी है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, उसका तकवा है, जो सालिहा है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है और पारसा है। तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज क्या? नेक औरत। अगर नेक औरत घर में है, गोया कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर नेक औरत नहीं है तो घर का माहौल दुरुस्त नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में गिन गिन कर बता दिया कि आदमी को कैसे शादी करनी चाहिए, किन किन चीजों को देख करके शादी करनी चाहिए। तो उनके मरअतु लिअरबईन, इंसान जब शादी करे तो 4 चीजों की बुनियाद पर शादी करता है। तो उनके मरअतु लिअरबईन, 4 चीजों की बुनियाद पर इंसान निकाह करता है। लिमालिहा, लड़की अगर मालो दौलत वाली है इंसान उससे निकाह कर लेता है। बोले हसबिहा, और अगर उसका हसब व नसब, उसका खानदान आला है, इंसान उसके हसब व नसब को देख करके, उसके खानदान को देख करके उससे शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है। बोली जमालिहा, और उसकी खूबसूरती को देख करके इंसान शादी करता है। लड़की अगर खूबसूरत है इंसान फौरन पैगाम भेजता है निकाह का और शादी कर लेता है। बोली दीनिहा, और चौथी चीज अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, बोली दीनिहा, दीनदारी को भी इंसान देख करके शादी करता है। फर्ज पर बिजाते दीन, 3 चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइड कर दिया। न मालो दौलत देखनी है, न हसब व नसब देखना है, न खूबसूरती देखनी है। बोली दीनिहा, फर्ज पर बिजाते दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। ये कोई नसीहत नहीं है, हुक्म दिया फर्ज पर बिजाते दीन, तुम दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी का इंतखाब करो, दीनदारी को चुनो, और दीनदारी से बढ़कर किसी भी चीज को मत रखो। शादी करते वक्त अगर आदमी निकाह करता है, दीनदारी नहीं है, माल और दौलत है, चलो शादी कर लिया, दीनदारी नहीं है, हसब व नसब है, शादी कर लिया, दीनदारी नहीं है, खूबसूरत है, शादी कर लिया, नतीजा क्या होगा? दीनदारी को अगर उसने तर्क कर दिया, दीनदारी को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तरीबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए। तुमने 3 चीजों को तरजीह दे दी, तुमने मालदारी को देख लिया, तुमने हसब व नसब को देख लिया, तुमने खूबसूरती को देख लिया, दीनदारी चली गई किधर? दीनदारी कहां रह गई? अगर तुमने दीनदारी को छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फस पर बिजाते दीन तरीबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए। दिल में हाथ रखकर कहिए,
जब आपने शादी की, दीनदारी को देखा, जो लोग परेशान हैं, घर के हालात से परेशान हैं, घर के माहौल से परेशान हैं, वो खुद से सवाल करे आज क्यों परेशान है। भाई हंसने की बात और मुस्कुराने की बात नहीं है, क्या है, आप खुद से सवाल कीजिए। जब आपने निकाह किया तो आपने किस चीज को देखा, किस चीज को तरजीह दी? मालदारी को तरजीह दी। आज हालत क्या है आपकी, खुद देख लीजिए। आपने हसब और नसब को देखा, हालत क्या है आप खुद देख लीजिए। आपने खूबसूरती देखी, आज घर का हाल क्या है, घर के अंदर का माहौल क्या है, आप खुद जानते हैं। अगर आपने दीनदारी को तरजीह दी होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल किया होता, तो फिर ये जो माहौल घर के अंदर पनप रहा है और ये जो फसाद और बिगाड़, ये झगड़े लड़ाइयां जो घर के अंदर हो रहे हैं, आज ये नौबत ना आती। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर घर के अंदर के माहौल को दुरुस्त करना है, फस पर बिजाती दीन, तो दीनदारी का इंतखाब किया जाए, दीनदारी को चुना जाए। तो ये दूसरी चीज थी कि आदमी अगर घर के अंदर इस्लाह चाहता है, घर के अंदर के हालात को अगर अच्छा करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो दीनदारी का इंतखाब करे। दीनदार अगर बीवी है तो उससे फायदा क्या होगा? उस दीनदार औरत की कोख में पनपने वाला हर एक बच्चा आगे चल करके दीनदार होगा। उसकी कोख से निकलने वाली जितनी नस्लें होंगी, वो तमाम की तमाम नस्लें दीनदार होंगी, दीन पर होंगी, तौहीद पर होंगी, अकीदे पर होंगी। दीनदार अगर औरत है तो नस्लें दुरुस्त हैं। अगर दीनदारी नहीं है औरत के अंदर, नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी। आपको 20 सालों के बाद कोई याद नहीं करने वाला, एक सदी आप गुजर गए, आपको कोई याद नहीं करने वाला। लेकिन वहीं अगर आपके पास दीनदारी है, आपकी बीवी के अंदर दीनदारी है, आपकी बीवी नेक है, सालिहा है, मेरी माँ और बहनों आप भी गौर करो, अगर आपके अंदर दीनदारी है, आप अगर नेक हैं, आप 5 वक्त नमाजें पढ़ती हैं, तो आप खुश रहिए। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। ये खुशनसीबी है औरतों के लिए कि अगर वो दीनदार है तो वो दुनिया की डंके की चोट पे कह सकती है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी चीज हूं और सबसे फायदेमंद चीज हूं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो दीनदारी बहुत जरूरी है। दीनदारी अगर है तो घर का माहौल दुरुस्त है, नस्लें आने वाली दुरुस्त होंगी, वरना अगर दीनदारी नहीं है नस्लें बिगड़ जाएंगी। नस्लें जो है बिदात और खुराफात पर होंगी और शिरकों पर होंगी, इंसान मुशरिक बन जाएगा, नस्लें बिगड़ जाएंगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और दीन से इंसान हट जाएगा अगर दीनदारी नहीं है तो ये नेक औरत का फायदा है, नेक बीवी का ये फायदा है कि अगर नेक बीवी है तो घर के तमाम हालात दुरुस्त हो जाएंगे। आप याद कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं और डर के मारे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे कम्बल ओढ़ा दो, कम्बल ओढ़ा दो, मैं डर गया हूं, मुझे लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कि कहीं मेरी जान न निकल जाए, मुझे डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरी वफात न हो जाए। मैंने जिब्राइल अमीन को देखा है, मैंने ऐसे ऐसे फरिश्ते को देखा है कि उसने मुझे सीने से दबाया और मेरी ऐसी हालत हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर के मारे घर आते हैं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर चूंकि नेक सिफात थी, दीनदार थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर से क्या कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहती हैं, वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी भी जलील नहीं करेगा। वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, आप तो लोगों की जो है गमों को दूर करते हैं, आप तो यतीमों का सहारा बनते हैं, आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप रिश्तेदारियों को निभाते हैं, आप लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी मायूस नहीं करेगा। ये एक नेक बीवी के अंदर सिफत होती है कि जब शौहर घर से बाहर हो और परेशानी के आलम में घर में आए
तो एक नेक बीवी की सिफत ये है, एक नेक बीवी का किरदार ये है कि अपने शौहर को दिलासा दे, अपने शौहर के गमों को दूर करे, अपने जुमलों से अपने शौहर की तारीफ बयान करे, अपने सही जुमलों से अपने शौहर को मोटिवेट करे। एक नेक बीवी का किरदार है। घर से बाहर है शौहर, परेशान है, कमाई के लिए गया है, कमा रहा है, धूप में मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत में धूप जो है खून पसीना एक करके आदमी कमा करके घर आ रहा है, थक हार करके घर आ रहा है। घर आया, बीवी की शिकायतें शुरू। घर आया, बीवी की शिकायतें शुरू। अरे आप बाहर गए थे, मेरे बड़े बेटे ने ऐसा किया, आपके छोटे लाडले ने ऐसा किया, आपकी बच्ची वहां चली गई, आपके बच्ची ने जो है ये कर दिया, जो है फला चीज तोड़ दी। घर से बाहर शौहर है, मेहनत करके मजदूरी करके घर में आ रहा है, और नेक बीवी का किरदार क्या होता है? शौहर को देख करके मुस्कुराए, ताकि शौहर के तमाम थकन फौरन दूर हो जाए, शौहर की परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा अलमिया ये है कि शौहर घर से बाहर है, थक हार करके जैसे ही आया, बीवी की जो है शिकायतें शुरू। एक पूरी लिस्ट तैयार होती है कि आज क्या हुआ, आपकी माँ ने मुझे डांट दिया, आपकी जो है बहन आई थी, ऐसा ऐसा बोल के चली गई। ये तरह तरह की चीजें एक नेक बीवी के अंदर नहीं हुआ करती है। नेक बीवी कौन? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हालात में दिलासा देती हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है, खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा है। लिहाजा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने जुमलों के जरिए से अल्लाह के रसूल को दिलासा देती हैं, उनका जो है उनकी हौसला अफजाई करती हैं और उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती है। ये एक नेक बीवी का किरदार हुआ करता है। लिहाजा अगर घर के अंदर नेक बीवी है, शौहर भी पुरसुकून, बीवी भी पुरसुकून, बच्चे भी पुरसुकून, और घर के अंदर तमाम के तमाम अफराद पुरसुकून होंगे। और जब घर में तमाम के तमाम लोग पुरसुकून है तो घर का माहौल भी जन्नत नुमा हो जाएगा, जन्नत नजीर हो जाएगा। ये एक नेक बीवी का किरदार होता है। तो ये दूसरी चीज थी कि अगर इस्लामी घर चाहते हैं तो नेक बीवी का इंतखाब किया जाए। और नेक बीवी का इंतखाब याद रखिए शादी के वक्त ही होता है। शादी में अगर आपने जो है माल दौलत को देख लिया, खूबसूरती को देख ली, खानदान को देख लिया, तो फिर घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर नेक जो है बीवी नेक भी है और मालदार भी है, बीवी नेक भी है, दीनदार और क्या है हसब व नसब वाली है, बीवी नेक भी है और खूबसूरत है, कोई मसला नहीं, सोने पे सुहागा। दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, माल दौलत भी है, हसब व नसब भी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके लिए नेमत है। लेकिन आपने सिर्फ दीनदारी को छोड़ दिया और बाकी तीन चीजें और ले ली, तो फिर घर यकीनन आपका बर्बाद हो जाएगा और घर का माहौल बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लिहाजा चाहिए कि निकाह के वक्त ही, अपने बच्चों के निकाह के वक्त ही, बच्चियों के निकाह के वक्त ही देख लिया जाए कि घर में जो बीवी आने वाली है, बहू आने वाली है, वो दीनदार है या नहीं है। और इसी तरीके से सिर्फ बीवी का दीनदार होना जरूरी नहीं है, एक बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी का जब वो रिश्ता कराता है तो बच्चा कैसा है, लड़का कैसा है, दीनदार है या नहीं है, कहीं वो शराब तो नहीं पीता, कहीं वो सिगरेट तो नहीं पीता, कहीं वो जुआ तो नहीं खेलता, कहीं वो बेनमाजी तो नहीं है, कहीं वो गाली गलौज तो नहीं करता। ये चीजें अगर उसके अंदर है, रिश्ता खत्म कर दिया जाए, रिश्ता खत्म कर दिया जाए। दीनदार है तो फिर रिश्ता किया जाए, उसमें बरकत ही बरकत होगी और घर के अंदर सुकून ही सुकून होगा। तो ये दूसरी चीज थी। इसी तरीके से तीसरी चीज, घर के अंदर अगर माहौल दुरुस्त करना चाहते हैं और घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं, तो तीसरी चीज ये है कि अपने घर वालों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करें। ये बहुत बड़ी चीज है। लोग दुनियावी तालीम में बहुत आगे हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए, दुनियावी तालीम में बहुत आगे हैं। दीनी तालीम में कहां तक है? मुहासबा करें आप खुद। एक आदमी, हर एक आदमी सवाल करे उसके घर में कौन दीनी तालीम से जुड़ा हुआ है, उसके घर में कौन सा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, या उसके घर में कौन सा बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता हो रहा है? नहीं है। आज बहुत कम लोग आपको समाज में मिलेंगे जो दीनी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता पैरास्ता करा रहे हैं। दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, दीनी तालीम नहीं है, घर में माहौल दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो मोमिन है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अगर उसके अंदर नेक अमाल है
نیک اعمال کا مطلب کیا ہوا؟ دینی تعلیم ہے، اور تعلیم کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا علم اس کے پاس ہے اس پر وہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہے، اگر اس کے اندر اس تعلیم پر وہ عمل کر رہا ہے یا عمل کر رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیں گے، ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیں گے، ہم اس کے لیے گھر کو پرسکون بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم پرسکون بنا دیں گے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، اللہ کے شریعت سے اعراض کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے، ہم اس کی زندگی تباہ کر دیں گے، اس کی زندگی برباد کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، تو ہم ایسے بندوں کو جو میرے ذکر سے دور رہا کرتے تھے، جو میری شریعت سے دور رہا کرتے تھے، جو صرف دنیاوی تعلیم میں آگے ہوا کرتے تھے، دینی تعلیم کیوں نہیں کوئی پرواہ نہ تھی، دینی تعلیم کیوں نہیں کوئی فکر نہ تھی، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ آدمی سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے تو نے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں تو میری آنکھوں میں بینائی تھی، دنیا میں میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں ساری چیزیں دیکھ سکتا تھا، اے اللہ لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو نے آج مجھے اندھا کیوں بنایا، دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، تمہارے سامنے میری آیتیں آتی تھی، تمہارے سامنے علماء میری آیتیں بیان کیا کرتے تھے، علماء تقریروں کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے تمہارے سامنے حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ كذلك اتتك آیاتنا، جب کبھی تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھی تم ان سے اعراض کیا کرتے تھے، تم تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، تم شریعت سے دور ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا فنسیتها، تم میری آیتوں کو بلا دیا کرتے تھے، دینی تعلیم سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جس طریقے سے تم نے دنیا میں مجھے اگنور کیا تھا، میری آیتوں کو نظر انداز کیا تھا، آج بھی میں تمہیں نظر انداز کر دوں گا۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ انسان کیا سمجھتا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لے کامیاب ہو گیا، بڑی ڈگری مل گئی، اچھی نوکری مل گئی، جاب لگ گیا اور انسان سیٹل ہو گیا، سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کہتا ہے اگر تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری شریعت سے اگر تم نے دوری اختیار کی، شریعت سے دوری کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ انسان کے پاس شریعت کا نالج ہی نہیں ہے، شریعت کا علم ہی نہیں ہے، دین کا علم ہی نہیں ہے، تو اگر دین کا علم نہیں ہے تو پھر اللہ کی شریعت سے وہ دور ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کی شریعت سے وہ دور ہوا یا نہیں ہوا؟ دور ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم ڈگری لے لو، تم اچھی جاب لے لو، تم اچھی بلڈنگ بنا لو، تم اچھی گاڑیاں لے لو، تم اچھے جو ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ تمہارے اندر اگر دینی تعلیم نہیں ہے، تمہارے اندر اگر دین کی سمجھ نہیں ہے، شریعت کی سمجھ نہیں ہے، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، تمہارا جینا محال ہو جائے گا، تمہارا جینا دشوار کر دیں گے ہم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کسی کو دھمکی دے رہا ہوں کہ تو دین سے نہیں جڑ رہا ہے، کل میں بتاتا ہوں تجھے، میں بول رہا ہوں یہ آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے میرا بیٹا دین سے نہیں جڑ رہا ہے میں اس کو بہت ماروں گا، نہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں سے آیتیں نازل کر کے کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سن لو ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے، زندگی دینے والا بھی میں، موت دینے والا بھی میں، تمہیں رزق دینے والا بھی میں، تمہیں اولاد دینے والا بھی میں، جب ساری چیزیں میری ہیں، میری ہی شریعت سے تم نظر انداز کرتے ہو، میری ہی شریعت سے اعراض کرتے ہو، میری ہی آیتوں کو تم اگنور کرتے ہو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم نے ہمیں اگنور کر دیا، ہمیں نظر انداز کر دیا، تو ہم بھی تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے، تمہاری زندگی ہم دشوار بنا دیں گے، جینا محال کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر آپ کو
دینی تعلیم کی اہمیت جاننی ہے تو صحیح بخاری اٹھائیے. ہم نے بخاری پڑھی ہے. بخاری کے اندر ایک باب ہے, باب تعلیم الرجل امته واهله. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر ایک باب نقل کرتے ہیں, ایک باب قائم کرتے ہیں, اور اس کے ضمن میں بہت ساری حدیثیں لے کر کے آتے ہیں. باب کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ باب تعلیم الرجل امته واهله, کہ آدمی کا اپنے گھر والوں کو تعلیم دینے کا باب. گھر والوں کو تعلیم دینے کا باب. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو تعلیم دے. اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر وہ تمام حدیثوں کو نقل کیا, وہ تمام حدیثیں اکٹھا جمع کر دی اور اس کی اہمیت کو بتایا. کیوں ایک جگہ کیوں جمع کیا حدیثیں, اکٹھا کیوں کی حدیثیں؟ کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے سربراہ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے, اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے, اور اپنی بیوی کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے. یہ ایک گھر کی ذمہ داری ہے, گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے. ورنہ اگر گھر کی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ہے پھر گھر کا ماحول بھی درست نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. گھر والے کب جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ شریعت کا علم نہیں ہے, نماز کا طریقہ نہیں معلوم, اور عورتوں کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں معلوم, جو ہے دین کا بیسک علم نہیں ہمارے پاس. ہم کہاں سے اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ جائیں گے؟ ہم کہاں سے اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا, شریعت کی جانکاری ہوگی, دین کی سمجھ ہوگی, اور دین کی تعلیم ہوگی, قرآن و حدیث کا علم ہوگا, تبھی تو ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے, تبھی ہمارے دل میں اللہ کی خشیت طاری ہوگی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ڈرنے والے وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں. العلماء, علماء کی جب تفسیر میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں, حدیث کو جاننے والے. کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اب عالم بن رہے ہیں, کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, لیکن قرآن و حدیث کا علم ہونا یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف انہی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں, جو حدیث کا علم رکھتے ہیں. اگر قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, اللہ سے ڈریں گے, اللہ کے دین کو جاننے والے لوگ ہیں, تو ہر اس قدم سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا, اور ہر وہ قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن اگر شریعت کا علم نہیں ہے, قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, تو انسان اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا, اور بلا نڈر ہو کر کے, بلا خوف و خطر انسان ہر وہ قدم بڑھائے گا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا خسارہ ہے کہ اگر انسان کے پاس دینی علم نہیں ہے تو اس کا ماحول, اس کا گھرانہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا. اور یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, کہ ہم اس کی زندگی تباہ کر دیں گے. اگر گھر کے اندر دینی ماحول ہے, گھر کے اندر جو والدین ہیں دیندار ہیں, اگر ماں دیندار ہے, قرآن جانتی ہے, حدیث جانتی ہے, نبی کی سیرت جانتی ہے, صحابہ کے واقعات جانتی ہے, تو اپنے بچوں کو جھوٹی کہانیاں نہیں سنائے گی, اپنے بچوں کو یہ فلمی اداکاروں کے بارے میں نہیں بتائے گی, بلکہ قرآن کی تعلیم دے گی, حدیث کی تعلیم دے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کرے گی, صحابہ کرام کے واقعات کو ان کے سامنے بطور رول ماڈل پیش کرے گی, اور صحابہ کرام کی زندگی کو ان کے سامنے ہیرو کی طرح پیش کرے گی. کون ہے ہمارے ہیرو؟ یہ ایک ماں اپنے بچوں کو بتائے گی. آج لوگ فلمی اداکاروں کے فین بن جا رہے ہیں, کرکٹرز کے فین بن جا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو کھیلنے والے لوگ ہیں یا فلمیں بنانے والے لوگ ہیں, لوگ ان کے فین ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ دینی تعلیم کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ خالد ابن ولید کے بارے میں اٹھائیے, حضرت عمر کے بارے میں اٹھائیے, حضرت حمزہ کے بارے میں اٹھائیے, ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں اٹھائیے, اللہ کے رسول کی بہادری دیکھیے, شجاعت دیکھیے, علی کی بہادری دیکھیے, شجاعت دیکھیے. اگر آپ نے ان کی سیرت کو دیکھ لیا, پھر آپ کے کون فلمی اداکار, آپ کے کون کرکٹر, اور آپ کے کون یہ کھلاڑی. ہمارے پاس اپنے ہیرو ہیں, ہمارے پاس اپنے لیڈر ہیں. جب ہم نے اپنے لیڈروں کو نہیں جانا, اپنے ہیرو کو نہیں جانا, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم دوسروں کو ہیرو مانیں گے, دوسروں کو اپنا رول ماڈل مانیں گے. اگر ہم نے حضرت حمزہ کے بارے میں جانا ہوتا, خالد بن ولید کے بارے میں جانا ہوتا, کون ہے خالد بن ولید؟ بچوں کو سنائیے کون ہے خالد بن ولید.
زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی، چاہے وہ اسلام سے پہلے ہو یا چاہے اسلام کے بعد ہو، ایک بھی جنگ نہیں ہاری. تاریخ گواہ ہے، ایک بھی جنگ نہیں ہاری. اس سے بڑا ہیرو کہاں ہے؟ اس سے بڑا ہیرو کہاں ملے گا ہمیں اور آپ کو؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. دین سے دور ہیں ہم، اسلام سے دور ہو گئے، ہم شریعت کے اور جو ہے شریعت کی سمجھ سے دور ہو گئے، ہم اور آپ اللہ سے دور ہو گئے، رسول سے دور ہو گئے، صحابہ سے دور ہو گئے. اگر ہم نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، دین کا علم حاصل کر لیا، تو پھر ہماری زندگی سدھر جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور آگے دیکھیے، تو یہ چوتھی چیز ہے کہ ہم اور آپ اگر تیسری چیز ہے کہ اگر ہم نے دینی تعلیم حاصل کر لی تو پھر ہماری زندگی سنور جائے گی. چوتھی چیز کہ انسان اپنے گھر کے اندر کا ماحول اگر اسلامی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھے. غور سے سوچیے اس تعلق سے. انسان اگر چاہتا ہے گھر کا ماحول درست ہو جائے، گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے آپ کو پردوں میں ڈھانکے رکھیں، اپنے اوپر چادریں ڈھانپ لیا کریں. آپ جلابیب کی تفسیر میں جب جائیں گے تو یہ جلابیب کیا ہے؟ یہ جلباب کی جمع ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت کا مطلب کیا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں. جلابیبہن ایسا کپڑا کہتے ہیں جلباب کو کہ سر سے لے کر کے پاؤں کا ناخن بھی کور ہو جائے، پاؤں کا ناخن بھی ڈھک جائے، یہ جلباب ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہے یہ چیز، پردے کے نام پر فیشن ہے، برقعے کے نام پر فیشن ہے، نقاب کے نام پر فیشن ہے ہمارے سامنے. برقع بھی ایسا کہ اتنا چست کہ جس سے جسم نمایاں ہو جائے، نقاب بھی ایسا کہ جس سے چہرہ تو نہیں چھپ رہا، صرف جو ہے سر ڈھانپا جا رہا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ، اس میں بھی کوئین، اس میں بھی اسلامی پری، یہ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لکھی ہوئی آ رہی ہے. اس چیز کو انسان پہن کر کے، عورتیں پہن کر کے کہتی ہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے سماج میں یہ چیزیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں. اسلامی شہزادی، اسلامی کوئین، یہ چیزیں لگا کر کے عورتیں بازار میں نکل رہی ہیں شاپنگ کے لیے، اور کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں. چہرہ کھلا ہوا ہے، پردہ کر رہی ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ لوگ آج کل کیا ایکسکیوز دیتے ہیں؟ ایک ایکسکیوز کیا دیتے ہیں، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ نہیں صاحب پردہ ضروری نہیں ہے، آنکھیں درست ہونی چاہیے، دل کی نیت درست ہونی چاہیے، پردہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا نیت درست ہو جائے، ہم اور آپ نیت صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ کو ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے پردہ کرنے کا حکم دیا، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کون ہے صحابہ اور کون ہے امہات المومنین؟ صحابہ وہ جماعت ہے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اور امہات المومنین کون ہے؟ امہات المومنین کا مطلب ہی کیا ہے؟ مومنوں کی ماں. اچھا مومنوں سے، اچھا ماؤں سے کیا شادی جائز ہے؟ ماؤں سے نکاح جائز ہے؟ نہیں ہے. صحابہ کرام چاہ کر بھی ازواج مطہرات سے شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی، اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد بھی امہات المومنین کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی ماں ہے. نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے. جب ماں ہے وہ، صحابہ ان سے شادی نہیں کر سکتے. جب ان سے شادی نہیں کر سکتے، جس طریقے سے ہم اپنی ماؤں سے شادی نہیں کر سکتے، تو جب جس سے شادی نہیں کیا جا سکتا اس سے پردہ بھی نہیں ہے نا، پھر ان سے پردہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر اللہ رب العالمین کا دیکھیے حکم، دیکھیے آیت اللہ رب العالمین کیا نازل فرما رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی، اس دنیا کی سب سے بہترین جماعت کو خطاب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے دنیا کی سب سے بہترین جماعت سن لو، جب تمہیں کبھی کوئی ضرورت پڑے، کن سے؟ دنیا کی سب سے بہترین عورتوں سے،
दुनिया के सबसे बेहतरीन मर्दों को कहा जा रहा है कि जब तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतों से कोई काम पड़े, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन, जब तुम्हें कोई काम पड़े अज़वाज मुताहरात से, जब तुम्हें कभी कोई काम पड़े उम्महातुल मोमिनीन से, मतान फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो तुम पर्दे की आड़ में उनसे सवाल किया करो, तुम पर्दे की आड़ में उनसे अपनी जरूरतों के ताल्लुक से बातें किया करो। आज हमारा हाल ये है कि हम नीयत साफ होने की रट लगाए बैठे हैं कि नीयत साफ होनी चाहिए, और ये नीयत साफ होने का जो चोचला है और ये जो चोचलेबाजी है, ये हमें और आपको बेहयाई की तरफ लेके जा रही है। कैसी बेहयाई? आदमी कहता है भाभी हमारी माँ है, साली हमारी बहन है, चलो भाई रिश्ता खुद हम अपने आप बनाने लग गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम व अखवातुकुम मिन अर्रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों को एक तरफ से गिना दिया, यही रिश्ते तुम्हारे हैं जिनसे तुम बगैर पर्दे के मिल सकते हो, जिनसे तुम बगैर पर्दे के बात कर सकते हो, जिनसे तुम बगैर किसी जो है पर्दे के मिल सकते हो। इन रिश्तों के अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं। फिर हम और आप कौन हो गए? शरीयत साजी हम खुद करने लगे। हमने कभी भाभी को माँ बना लिया, हमने कभी साली को बहन बना लिया, हमने दुनिया की किसी अपनी क्लास फ्रेंड को हमने अपनी बहन बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब रिश्ता बना दिया, हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम भाभी को माँ बना लें या साली को हम बहन बना लें। ये जो भाभी माँ है, साली बहन है, इसकी आड़ में कितने गुनाह होते हैं और कितनी बेहयाइयां होती हैं, ये हमारी और आपकी आंखों से ढकी छुपी नहीं है। हम और आप इन तमाम चीजों से वाकिफ है कि ये बीवी को माँ बनाने का जो चोचला है, ये साली को बहन बनाने का जो चोचला है, ये कितनी बेहयाइयों को साथ में लेकर के आता है। इंसान बज़ाहिर ज़बान से तो कहता है कि मेरी भाभी मेरी माँ है, लेकिन उसके दिल में क्या चीजें हैं ये खुद वो जानता है। एक जो जीजा है वो अपनी साली से, जिसको बहन मानता है, वो साली से किस तरीके से मजाक करता है। हाँ बताऊं वो बात, साली आधी घर वाली, नौज़ुबिल्लाह, साली आधी घर वाली क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अलग रिश्ता बनाया, हमने एक अलग रिश्ता बनाया, और हमने कह दिया कि ये पर्दा क्या है? पर्दा कोई नाम ही नहीं है, पर्दा तो ये एक पुराना रिवाज है, ये ओल्ड फैशन है। माजरत के साथ अर्ज करता हूं, ये पर्दा कोई ओल्ड फैशन नहीं है, ये औरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लाम ने औरतों को इस पर्दे की वजह से तहफ़्फ़ुज़ बख्शी है। और थोड़ी और अगर सख्त लहजों में मैं कहूं तो लोग बुरा मान जाएंगे हो सकता है, लेकिन इस्लाह इसी जगह से होती है, इस्लाह मस्जिदों से होती है। आज मुझे बोलने दीजिए, पर्दों के नाम पर हम और आप क्या करते हैं? बड़े फख्र से कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग भी बड़े फख्र से कहते हैं कि हम अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग में नहीं जाते। और भी हम अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग में नहीं जाते, बल्कि हम ले जा करके दुकानदार के पास छोड़ करके आ जाते हैं। ईमानी गैरत कहां गई? ईमानी गैरत कहां गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला, ऐ नबी आप औरतों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मोमिना मर्दों से, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो पर्दों की आड़ में रहे। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कह दिया औरतों से कि तुम अपने घर में ठहरी रहो, घर से बाहर बिला वजह ज़माने जाहिलियत की तरह ना निकलो। जिस तरह ज़माने जाहिलियत की औरतें निकला करती थी उस तरीके से ना निकलो। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मर्द हजरात जो अपने आप को बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कहलाते हैं, मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग पे नहीं जाते, जा करके उन्हें दुकानदार के पास छोड़ करके आ जाते हैं, उन्हें जो लेना है वहां से लेकर के आ जाए। अब बताइए आप कहां से दलील लेकर के आएंगे? आप कहां से इस चीज को जायज करार देंगे? आप कहां से इस चीज को साबित कर देंगे कि अपनी बीवियों को गैर मर्दों के सामने छोड़ करके आना, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो, चाहे किसी दूसरे घर से हो, चाहे जो है जेवरात लेने के लिए हो, चाहे कपड़े लेने के लिए हो, चाहे सब्जी लेने के लिए हो, कोई भी मामला हो। आप गौर कीजिए, हज जैसे इतने अच्छे अमल के लिए, हज कितना बड़ा अमल है, इस्लाम का एक रुकन है, लेकिन अकेली औरत नहीं जा सकती। हज करने के लिए अकेली औरत नहीं जा सकती, उसके लिए महरम का होना शर्त है। उसके साथ या तो उसका बाप हो, या उसका शौहर हो, उसका भाई हो, या उसका बेटा हो। एक औरत अकेले हज पर भी नहीं जा सकती।
جو کہ ایک نیک عمل ہے، عبادت ہے، دین کا ایک جو ہے ستون ہے حج. جب اتنے بڑے احکام پر، اتنے بڑے حکم پر جب ایک عورت اکیلے نہیں جا سکتی بغیر اپنے محرم کے، بغیر باپ کے، بیٹے کے، شوہر کے، بھائی کے، تو پھر یہ شاپنگوں پر جانا، یہ مارکیٹ میں جانا، یہ بازاروں میں جانا، یہ سبزی لینے جانا اور اکیلے جانا، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور چلو عورتوں کے اندر اگر ذرا سمجھ نہیں ہے، کم از کم مردوں کے اندر تو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کو اتنی بے غیرتی کے ساتھ جا کر کے کسی دوسروں کے پاس چھوڑ کر کے نہ. میں اسی لیے پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، لیکن جو قرآن حدیث کی باتیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو بیان کرنا ہوگا. اگرچہ ہمیں اس تعلق سے علم نہیں ہے، آج علم ہے تو ہم کل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. کل سے نہیں بلکہ آج سے عمل کریں گے اس پر. اگر عورت کو کوئی ضرورت ہے خود اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، اپنی نگرانی میں لے کر کے جائیں گے، اپنی ماتحت میں لے کر کے جائیں گے، اور ضرورت پوری ہوتے ہی گھر میں واپس لے کر کے آ گئے. یہ پردہ کوئی اولڈ فیشن نہیں ہے، یہ ایک اسلامی تحفظ ہے. اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے عورتوں کو آزمانا چاہتا ہو. کیا بعید بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس پردے کے ذریعے سے عورتوں کو آزمانا چاہتا ہے. اور عورتیں یہ نہ سمجھے کہ صرف عورتوں کے لیے یہاں پر پابندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی آیت نازل فرمائی نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے کسی غیر محرم پر اپنی نگاہوں کو آزاد نہ کر دے، کسی غیر محرم کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں اس پر نہ ڈال دے. یغضوا من ابصارهم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو حکم دونوں طرف ملا، عورتوں کو بھی ملا کہ وہ پردہ کریں، مردوں کو بھی ملا کہ وہ اپنی نگاہوں کو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں پردہ نام کی چیز ہے تو گھر درست ہے. اگر پردہ نہیں ہے، پردے کا رواج ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا، اور یہ ہم غیروں کی تہذیب اپناتے ہوئے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، اور یہ لبرلزم کو ہم جو ہے بڑھاوا دیتے ہوئے اگر ہم نے پردے کو سائڈ رکھ دیا اور محض نقاب کے نام پر ہم نے ایک فیشن کو اگر فالو کر لیا، ہم نے برقعے کے نام پر اگر محض فیشن کو فالو کر لیا، تو پھر معاف کیجئے کہ ہمارا گھر اسلامی نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ گھر شیطان کا گھر کہلائے گا. وہ گھر اسلامی گھر تو کبھی بھی نہیں کہلا سکتا. تو پردوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس چیز کا حکم دے دیا. اگر پردہ ہے تو گھر میں حالت درست ہے، پردہ نہیں ہے تو گھروں کے حالات درست نہیں ہو سکتے، گھر کے حالات پرسکون نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ گھر کے حالات کو اگر درست رکھنا ہے تو گھر والوں کو فتنوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے. گھر والوں کو فتنوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی فتنہ، چاہے وہ موبائل کا فتنہ ہو، چاہے وہ عورتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ آنکھوں کا فتنہ ہو، یا چاہے وہ اور کوئی بھی فتنہ ہو، دنیاوی کوئی بھی فتنہ ہو، ہر فتنے سے اپنے گھر والوں کو دور رکھنا ہے. اگر فتنوں میں ہم پڑ گئے، گھر کے حالات خراب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی سے بچو. اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرو، رسول کی نافرمانی سے ڈرو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ کہیں اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو کر کے، اللہ رب العالمین کہیں تم سے غصہ ہو کر کے، کہیں تم پر اپنا غیظ و غضب نازل کر کے، أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہیں تمہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے. فتنے میں مبتلا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی ایک جو ہے سزا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے. انسان اگر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، عذاب ہے. انسان اگر دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کو کہ پڑھائی میں دھیان کم ہے، موبائل میں دھیان زیادہ ہے، عذاب ہے. وہ انسان اگر جوانی کے عالم میں ہے اور وہ دینداری اس کے اندر نہیں ہے اور صرف عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور صرف شہوات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عذاب ہے اللہ رب العالمین کا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو ڈرو اس بات سے کہ اللہ تمہیں کہیں فتنے میں ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ڈرو اس بات سے کہ کہیں تمہیں اللہ رب العالمین دنیا ہی میں عذاب علیم میں نہ مبتلا کر دے، عذاب علیم میں نہ مبتلا کر دے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ اگر گھر کے حالات درست رکھنے ہیں تو پھر اپنے گھر والوں کو فتنوں سے بچانا ہوگا.
चाहे वो मोबाइल का फितना हो। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों पर मोबाइल फोन है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों पर मोबाइल फोन है। आप देखिए, आप खुद, हम और आप आज खुद ये बातें करते हैं कि इस मोबाइल की वजह से जितने फसादात हमारे घरों में दाखिल हुए हैं, इस तरीके का कोई दूसरी चीज और हमारे पास मौजूद नहीं थी। मोबाइल से पहले कोई ऐसा फितना नहीं था जिससे बच्चे फौरन बिगड़ जाए, जिससे घर के अंदर के बच्चों के अंदर न बड़ों की तमीज है, न बड़ों का अदब है, न छोटों पर शफकत है, न सलाम दुआ का माहौल है, न कुरान की तिलावत है, न जिक्र अज़कार है, न नमाज की पाबंदी है, न दुआओं का एहतमाम है, और न ही माँ बाप के इताअत और फरमा बरदारी का कोई जज्बा है। ये तमाम चीजों को खत्म करने वाली कौन सी चीज है? ये एक ही फितना, ये मोबाइल का फितना है। अगर मोबाइल का फितना हमारे घर में घुस गया है, ये फोन्स का फितना अगर हमारे घरों में घुस गया है, तो फिर याद रखिए बच्चे फोन्स में, मोबाइल्स में ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जिससे वो माँ बाप की तमीज भूल रहे हैं, गैरों को देख रहे हैं, गैरों का तरीका ले रहे हैं, गैर कैसे कपड़े पहन रहे हैं, गैरों के बाल कैसे हैं, हेयर स्टाइल कैसे हैं, गैर कौन से क्रीम लगा रहे हैं, अपने चेहरों को किस तरीके से सेट कर रहे हैं, दाढ़ियां कैसे बना रहे हैं। बच्चों से लेकर के, नौजवान से लेकर के बूढ़ों तक की हालत यह है कि मोबाइल के जरिए से अपने आप को गैरों के तर्ज पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस भी याद रखिए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी दूसरे कौम की और किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की, फहुव मिनहुम, तो याद रखो कि वो उसी में से है। हम और आप मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल किसका इजाद किया हुआ है? किसकी इजाद की हुई ये चीज है? यहूदियों की इजाद की हुई चीज है। इसके अंदर जितनी चीजें हम देख रहे हैं, यहूदियों की साजिशें हैं, हम और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, हम और आप उसे अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं। अगर हम उसे अपना रहे हैं तो फिर ये गैरों की मुशाबियत हो गई। और गैरों में भी कौन गैर? जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, जो यहूदी, अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन है, उनकी तर्ज को हम अपना रहे हैं और उनकी मुशाबियत इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर याद रखिए हम भी यहूदियों में शुमार हो जाएंगे। जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा और हमें जब जिंदा दोबारा उठाया जाएगा, तो हम यहूदियों की सफ में जाकर के खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार की बस वो उन्हीं में से है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों भरे दौर में इंसानों को नसीहत करते हुए फरमाया, बादिरू बिल अमाली कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, कि इंसान नेक अमाल करने में जल्दी करे, नेक अमाल करने में इंसान जल्दी करे, इससे पहले कि कहीं जुल्मतों का, अंधेरों का एक टुकड़ा जो बिल्कुल अंधेरा हुआ करता है, जुल्मों का कहीं अंधेरा ना आ जाए और फितनों के अंधेरों में इंसान गोता ना खाने लग जाए। बादिरू बिल अमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, कि इंसान अपने आप को आमाल की तरफ, नेक आमाल की तरफ, इबादतों की तरफ जो है जल्दबाजी में रखे, इंसान अपने आप को इबादतों की तरफ रग़बत दिलाए, क्योंकि फितनों का दौर है और फितनों में अगर इंसान मुब्तला हो गया तो फिर फितने ऐसे आएंगे कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुबह काफिर है, सुबह मोमिन है, शाम को काफिर हो गया, शाम को मोमिन है, सुबह काफिर हो गया। ये क्यों होगा? ये फितनों की वजह से होगा। लिहाजा अगर घरों की इस्लाह चाहते हैं, घरों को इस्लामी तर्ज पर तश्कील देना चाहते हैं, घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो अपने घर वालों को, अपने आप को दुनियावी फितनों से महफूज रखें, दुनियावी फितनों से बचा करके रखें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को कही सुनी बातों को समझने और उन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारा ये जो दावा है, इस दावे को तू मुकम्मल तौर पर पूरा करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घरों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं, ऐ अल्लाह हमारे घरों में बहुत सारी खामियां हैं, गैरों की मुशाबियत आज हम इख्तियार कर चुके हैं। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे घरों को इस्लामी तर्ज पर तू तश्कील दे दे। अल्लाह, हमारे घरों के अंदर जितनी खराबियां हैं, जितनी बिगाड़ हैं, फसाद हैं, अल्लाह उन तमाम फसादात को, उन तमाम बिगाड़ को, उन तमाम खराबियों को तू अपने फजल करम से दूर फरमा। अल्लाह, हम तमाम लोगों के अंदर जितनी भी गुनाह हैं, जितने भी जो है खताएं हैं, अल्लाह उन तमाम गुनाहों को, खताओं को अपने फजल करम से माफ फरमा। अल्लाह, हम तमाम लोगों ने जितने भी नेक अमाल किए, उन तमाम नेक अमाल को तो अपने फजल करम से कबूल फरमा और हमें इस दुनिया में जब तक जिंदा रख, हालत इस्लाम में जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।